मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। नमस्कार। इस गांधीनगर में चल रही G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश दिया है। आइए देखते हैं। Excellencies, ladies and gentlemen, namaskar. On behalf of 1.4 billion people of India, I extend a very warm welcome to you, to India, and to my home state of Gujarat. Joining me in welcoming you are the 2.1 million doctors, 3.5 million nurses, 1.3 million paramedics, 1.6 million pharmacists, and millions of others involved in the healthcare sector in India. Friends, Gandhiji considered health to be such an important issue that he wrote a book titled Key to Health on the subject. He said that to be healthy is to have one's mind and body in a state of harmony and balance. Indeed, health is the very foundation of life. In India, we have a saying in Sanskrit, Arogyam Paramam Bhagyam, Swastham Sarvartha Sadhanam. That is, health is the ultimate wealth, and with good health, every task can be accomplished. Friends, the COVID-19 pandemic has reminded us that health should be at the center of our decisions. It also showed us the value of international cooperation, whether in medicine and vaccine deliveries or bringing our people back home. Under the Vaccine Maitri initiative, India delivered 300 million vaccine doses to more than 100 countries, including many in the global south. Resilience has turned out to be one of the biggest learning of this time. Global health systems should also be resilient. We must be ready to prevent, prepare, and respond to the next health emergency. This is especially important in today's interconnected world. As we saw during the pandemic, health issues in one part of the world can affect all other parts of the world in a very short time. Friends, in India, we are following a holistic and inclusive approach. We are expanding health infrastructure, promoting traditional system of medicine, and providing affordable health care to all. The global celebration
of the International Day of Yoga is testament to the universal desire for holistic health. This year, 2023, is being marked as International Year of Millets. Millets or Sri Anna, as they are known in India, have several health benefits. We believe that holistic health and wellness can help enhance everyone's resilience. The establishment of WHO Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat, is an important step in this direction. And the holding of WHO Global Summit on Traditional Medicine along with G20 Health Ministers meeting will intensify efforts to harness its potential. It should be our joint effort to build a global repository for traditional medicine. Health and the environment are organically linked. Clean air, safe drinking water, sufficient nutrition, and secure shelter are major factors of health. I congratulate you for the steps taken towards the launch of the Climate and Health Initiative. The steps taken to address the threat of antimicrobial resistance are also commendable. AMR is a grave risk to global public health and all pharmaceutical advancement so far. I am also glad that the G20 Health Working Group has prioritized One Health, our vision of One Earth, One Health, envisages good health for the entire ecosystem for humans, animals, plants, and the environment. This integrated view carries Gandhiji's message of not leaving anybody behind. Friends, public participation is a key factor in the success of health initiatives. It was one of the main reasons for the success of our leprosy eradication campaign. Our ambitious program on TB elimination also encourages public participation. We have called upon the people of the country to become Nikshay Mitra or Friends for Eradication of TB. Under this, nearly 1 million patients have been adopted by citizens. Now, we are on our way to achieve TB elimination well ahead of the global target of 2030. Friends, digital solutions and innovations are useful means to make our efforts equitable and inclusive. Patients from far and wide can receive quality care through telemedicine. India's national platform
e-Sanjeevani has facilitated 140 million telehealth consultations to date. India's CoWIN platform successfully facilitated the largest vaccination drive in human history. It managed the delivery of more than 2.2 billion vaccine doses and real-time availability of globally verifiable vaccination certificates. The global initiatives on digital health will bring together various digital health initiatives on a common platform. Let us open our innovations for public good. Let us avoid duplication of funding. Let us facilitate equitable availability of technology. This initiative will allow countries in the global south to close the gap in healthcare delivery. It will take us one step closer to our goal of achieving universal health coverage. Friends, I conclude with an ancient Indian wish for humanity. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. That is, may all be happy, may all be free from illness. I wish you success in your deliberations. Thank you. Thank you very much. आपने प्रधानमंत्री का ये वीडियो संदेश देखा जो उन्होंने गांधीनगर में चल रहे G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के लिए प्रधानमंत्री ने अपना ये संदेश दिया। और अब शुरुआत कर लेते हैं अपने कार्यक्रम इस वक्त की शुरुआत करते हैं जिसमें हम देखेंगे ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ। और आज जो हम खास तौर पर बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले ये कि जो क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को पीएम ने संबोधित किया है, तो क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री ने इस परिषद के सम्मेलन में कही है। और साथ ही आज की जो खास चर्चा होगी वो ये कि एक तरफ गठबंधन, उसमें कई तरह के असमंजस हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो तैयार दिख रही है, एनडीए तैयार दिख रही है। तो क्या एनडीए चुस्त है और INDA जो है वो सुस्त पड़ रही है? इस पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात होगी कि क्यों पश्चिम बंगाल के इमामों पर ममता बनर्जी अपनी ममता बरसाने जा रही हैं, क्या है वजह। और इसके बाद बात करेंगे कि हिमाचल में एक तरफ तबाही का आलम है, जो वहां पर राहत और बचाव कार्य हैं उस पर फोकस करने के बजाय वहां के मुख्यमंत्री विवादित और शर्मनाक बयान दे रहे हैं। करेंगे उस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधार स्तंभ हैं पंचायतें। दमन में आयोजित बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री ने किया आह्वान, सामूहिकता के साथ काम करने से बढ़ती है ताकत। आज G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। गांधीनगर में 20 देशों के बीच आपात स्थितियों की रोकथाम, सस्ते चिकित्सा उपाय समेत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग की मजबूती पर है फोकस।
अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ समूह केंद्र में 4 करोड़वां पौधा लगाया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के 8 विभिन्न परिसरों में कुल 15 नवनिर्मित भवनों का भी किया ई उद्घाटन। अमित शाह ने कहा, एक पेड़ लगाने से कई पीढ़ियों को मिलता है ऑक्सीजन। 5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिसंबर तक हो जाएगा पूरा। वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, नौजवानों की प्रतिभा को निखारने का अहम जरिया बनेगा ये मंच। बारिश रुकने से सुधर रहे हैं हिमाचल के हालात। इस मॉनसून सीजन ने ली अब तक 328 लोगों की जानें। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में करेंगे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। तबाही के लिए बिहारियों को जिम्मेदार बताने वाला दिया था विवादित बयान। उधर पंजाब के भी कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप। और चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद के और नजदीक लाने के लिए आज किए जा रहे हैं थ्रस्टर फायर। 23 अगस्त को होगी चांद पर लैंडिंग। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले एजेंडे की प्रधानमंत्री के संबोधन की, जो प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में संबोधन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती पर दिया जोर। कहा, हम संगठन, संस्कार और समर्पण में करते हैं विश्वास। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही हम जन समर्थन अधिक से अधिक हासिल कर पाएंगे। तो पीएम ने गांवों और तहसीलों के विकास पर दिया जोर। जिलों की अलग पहचान ढूंढने की भी सलाह दी। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें हर गांव और तहसीलों के विकास पर देना होगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात खास तौर पर कही। अगर हम अपने जिले की एक ऐसी चीज ढूंढें जिसकी अपनी अलग पहचान हो तो जिले को उसका बहुत लाभ मिल सकता है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही पीएम ने कहा कि विश्वकर्मा योजना से 30 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है। और साथ ही कहा कि मनरेगा के तहत कराए गए निर्माण कार्य लाभकारी बनाए जाने चाहिए। 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना को बड़ा समारोह करके आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे 30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, पीएम ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने इसमें खास तौर पर कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही हम जन समर्थन अधिक से अधिक हासिल करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे, तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। शिशिर शेलार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की ये बैठक है, प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। हमने उनके भाषण का एक हिस्सा जरूर अपने दर्शकों को सुनवाया है, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कही हैं और वहां पर इस पंचायती राज परिषद में आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ इसका मकसद है? शिशिर।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर जिस प्रकार से क्षेत्रीय पंचायत परिषद का यहाँ पर आयोजन किया गया, इसका सीधा फोकस गांव की तरफ है। खास तौर पर प्रधानमंत्री ने द्वारा एक बात यहाँ पर कही गई है। उन्होंने कहा है कि देखिए जो कार्यकर्ता है वो लोगों के साथ हमेशा होता है। सरकार तो अपने जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो कई सारी योजनाएं चलाती है, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है लोगों के लिए, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है वो दरअसल यही इस प्रकार की लोक कार्य कल्याण जो योजना है वो लोगों तक पहुँचाता है और ज़्यादा जागृति पैदा करता है। तो प्रधानमंत्री का रुख स्पष्ट था कि हमारे जितने भी लोक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, जो जिला स्तर पर काम करते हैं, गांव स्तर पर काम करते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर काम करते हैं, दरअसल उनको ज़्यादा जागृत कर जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से फ़ायदा हो, इस प्रकार से रुख हालांकि उनका ये स्पष्ट रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसमें ये भी है कि कनेक्ट की हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सरकार अपने आप में काम करती है, लेकिन योजनाएं लाती है, तो ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए सरकार तो काफ़ी प्रचंड आंकड़ों से मजबूत है, लेकिन वही पार्टी को अगर मजबूत करना होगा तो पार्टी को लोगों तक जुड़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए खास तौर पर ग्राम पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर जो है लोगों को कहा गया है, खास तौर पर जो जनप्रतिनिधि है पार्टी के, उनको कहा गया है कि आप लोगों तक पहुंचिए, जो भी सरकारी नई योजना या फिर जो योजना है उनको किस प्रकार से उन तक पहुंचा जा सके, इस पर ध्यान दीजिए। पर्सन टू पर्सन कनेक्ट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये स्पष्ट रुख था कि जिस प्रकार से सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता भी जो है अपना काम बखूबी निभाए और जो काम सरकार कर रही है उनको लोगों तक पहुंचाए, सीधा फायदा उनको ट्रांसफॉर्म करे। ये इसका अगर देखा जाए स्पष्ट रूप से यहाँ पे उल्लेख किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, जैसे मैंने कहा कि गांव की तरफ ज़्यादा रुख है। जिस प्रकार से जो योजनाएं लाई गई उनको गांव को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, ये प्रमुख बात जो है यहाँ पर सामने आती है। हालांकि हमने देखा कि शहरों तक कई सारी योजनाएं, उनके कैसे लाभार्थी भी होते हैं। उदाहरण पर अगर देखा जाए मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना के लाभार्थी अगर देखा जाए शहरों में भी है, लेकिन गांव की तरफ भी अगर बढ़े तो अमृत सरोवर योजना का लाभ किस प्रकार से मिले, मनरेगा का लाभ गाँव वासियों को किस प्रकार से मिले, इसका ध्यान जो पंचायत लेवल पर जो सदस्य है पार्टी का, जहाँ काम कर रहा है, जहाँ तक बात करें जिला परिषद में काम कर रहा है, वो लाभ लोगों तक पहुंचाए, इस पर फोकस करने की जरूरत जो है सरकार प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे कही गई है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और प्रधानमंत्री की ये तमाम बातें उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर कही गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की। एक तरफ एनडीए चुस्त नजर आने लगा है, उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा है, और दूसरी तरफ INDAI अभी तक सुस्त पड़ा हुआ है। क्या वजह है, करेंगे चर्चा। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं दोनों तरफ के गठबंधन में किसकी क्या तैयारी है। दरअसल इस साल के अंत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी घोषणा तो की नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी, यानी कि अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया। पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश की 39 सीटों और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर उम्मीदवार देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और दूसरे दिन बीजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी। छत्तीसगढ़ का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सीएम भूपेश बघेल के विरोध में उनके भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, और बीजेपी का फोकस उन क्षेत्रों पर जहां 2018 में हार मिली थी। उधर INDAI गठबंधन में यह तय ही नहीं हो पाया कि इन राज्यों में कांग्रेस को अकेले जाना है या फिर गठबंधन में सपा और आपके साथ। तो संभव है कि मुंबई सम्मेलन में कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाए। INDAI गठबंधन में दरार की खबरों के बीच केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं, और सपा भी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने की बात पहले ही कह चुकी है। उधर महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार एक दिन की दिल्ली यात्रा के बाद बिहार लौट गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बड़ी तकरार के बीच वो दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो ही नहीं पाई। इस बीच नीतीश कुमार का अटल जी की समाधि पर जाना भी चर्चा का विषय बन गया। बिहार में लोग पूछ रहे हैं कि अटल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने नीतीश इससे पहले तो कभी नहीं गए, तो फिर इस बार क्या मजबूरी थी जो गए।
और बिहार में चर्चा इस बात की भी है कि दरअसल INDIA गठबंधन का सिर्फ मुखौटा है नीतीश कुमार। असली सूत्रधार तो लालू यादव हैं, क्योंकि उन्होंने ही पूरी पटकथा लिखी है INDIA की। कहा जा रहा है कि ये लालू यादव का बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा है, जिसमें ममता के साथ अन्य पार्टियां भी शामिल हुई हैं। तो सवाल बनता है कि INDIA गठबंधन का फिर अस्तित्व कब तक है? ये बड़ा सवाल है। लालू के जंगल राज का विरोध करके नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। आज फिर से हर दिन हत्या और लूट की खबरें आ रही हैं, सुशासन को तार तार कर रही हैं। ताजा मामला अररिया के एक पत्रकार की हत्या का है। स्थानीय अखबार के पत्रकार विमल कुमार यादव को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। सांसद चिराग पासवान ने इस पर कहा, बिहार में पुलिस को अपराधी गोली मार दे रहे हैं, पत्रकार की हत्या हो रही है, लेकिन नीतीश गठबंधन में व्यस्त हैं। सवाल यह है कि विपक्ष के सामने एजेंडा सिर्फ मोदी है, लेकिन उनके पास कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है या फिर सहयोगी, ये तय होने में अभी 5 राज्यों का चुनाव जो है वो सबसे बड़ी बाधा है। तो दरअसल बिहार में एक पत्रकार की हत्या पर LJP रामविलास गुट के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आइए सुनते हैं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है, बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के सामने। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का। तो कई सवाल उठ रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था पर। इधर दिल्ली में कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के CM केजरीवाल को फांसीवादी बताते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र बुलाती ही नहीं है, दूसरे मुद्दों पर चर्चा करती रहती है। वही हम कह रहे हैं ना, भाई प्रजातांत्रिक व्यक्ति थोड़ी है ये, तो जिसको कहते हैं ना फासिस्टवाद का एक नमूना है ये आदमी। अगर उसमें कुछ लोकतांत्रिक भावनाएं होती तो करता ना, उसमें लोकतांत्रिक भावनाएं तो है नहीं। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि क्या कुछ दुविधाएं हैं INDIA में और NDA किस तरह से लीड ले रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, और साथ में हमारे साथ जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत जयराम जी। और साथ में ऋषि मिश्रा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत ऋषि जी आपका भी। मैं शुरुआत विनोद जी आपसे करता हूं। क्या जो हमने ये टैग लाइन दी है कि NDA फिलहाल की बात कर रहा हूं, अभी कोई आगे की बात नहीं कर रहा मैं, फिलहाल NDA चुस्त और INDIA सुस्त, ये लग रहा है विनोद जी, जिस तरह से कि NDA भारतीय जनता पार्टी अपनी गतिविधियां कर रही है और जिस तरह उधर का मामला अधर में लटका हुआ है। नहीं लाल जी, आपकी जो रिपोर्ट है और आपका जो अभी ये सवाल है तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इसलिए सही है कि अभी आप देखिए कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई डेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये बात सही है कि इस साल के अंत में आते आते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से एक आप कह सकते हैं कि परंपरा से हटकर बिना चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट से पहले अगर इस तरह की तैयारी को सामने में लाके उन्होंने एक तरह से तो दिखाया है बीजेपी ने अपनी तैयारी का, और इस तरह के प्रदर्शन का तो सामने में जरूर रखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि अभी तक की जो ट्रेडिशन थी उस ट्रेडिशन में चुनाव आयोग के वहाँ पे डेट देने के बाद में, अनाउंसमेंट के बाद में पॉलिटिकल पार्टियों की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी थी उसकी मीटिंग होती थी और उसके बाद कैंडिडेट के नाम तय होते थे, जो अक्सर एक परंपरा है सारी पार्टियों में, हम देखते रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार पहली बार ऐसा दिखाया है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बीजेपी की मीटिंग हुई थी और उसके अगले दिन ये लिस्ट जारी हुई, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जहां चुनाव होने हैं इस साल के अंत में। तो आप ये देखिए कि 39 सीट मध्य प्रदेश के लिए, 21 सीट छत्तीसगढ़ के लिए देके बीजेपी ने एक बात तो ये साफ कर दिया है कि बीजेपी मैदान में पूरी डट के साथ में मुकाबला करने के लिए तैयार है। रही बात जब आप चुस्त और सुस्त की बात करते हैं तो उसमें एक चीज तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी INDIA की गठबंधन के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी आम आदमी पार्टी को लेके है, जो आप दिल्ली के 7 विधानसभा सीट के लेके जो इनकी पिछली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद का क्या हुआ, अभी संदीप दीक्षित के
जो अभी आपने साउंड बाइट चला है उससे आप समझ सकते हैं। जी जी। तो ये सीट शेयरिंग को लेके अभी मुंबई में जो होने वाला उनका अधिवेशन है उसमें यही फार्मूला तय होना है कि सीट शेयरिंग की हालत क्या होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपना डेट दे दिया है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में वो जाएंगे और हो सकता है कि इस हफ्ते में वो चुनाव के लिए जा रहे हैं प्रचार के लिए। तो अब अगर ये सवाल जरूर है सामने में आएगा, उधर सपा ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में भी वो अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बुंदेलखंड के आसपास के इलाके में सपा ने अपना एक बेस बनाया जिसका वो दावा करते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय राजनीति में और राष्ट्रीय फलक पे आने के लिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी की अपनी ललक है, समाजवादी पार्टी की भी ललक है, अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कांग्रेस कितना त्याग करने के लिए तैयार है। अगर कांग्रेस की तरफ से INDIA की ये जो मीटिंग है, जब तक मुंबई में ये तय नहीं होता है सीट शेयरिंग को लेके, तब तक तो ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती कि कभी भी कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से कोई सीट का अनाउंस करे और किसी चुनाव में इस दोनों राज्यों में चुनाव जाने के लिए अपना एक नया चेहरा दिखाए सामने में। लालचंद जी, ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास और जयराम जी के पास भी आऊँ, लेकिन उससे पहले ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, ये वाला जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पूछ रहा हूँ, कांग्रेस समर्थक के तौर पर भी आप जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं कांग्रेस समर्थक हूँ भी नहीं, मैं राजनीतिक विश्लेषक। अच्छा, ठीक है, आपका दावा बिल्कुल अपनी जगह पर। मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए कि एक तरफ ये तय नहीं हो पा रहा है कई राज्यों को लेकर के कांग्रेस पार्टी का कि अकेले जाना है कि गठबंधन में जाना है, कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नामों का ऐलान तक कर दिया, लिस्ट तक जारी कर दी, आप भी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही सही ये मानते हैं कि एनडीए ने कम से कम एक लीड लेकर के दिखा दिया है ये जो मिशन 2024 का रेस है इसमें? देखिए लालचंद जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, कई बार पार्टी क्या करती है, बहुत पहले ही टिकट का घोषणा कर देती है, कई बार और अपने विपक्ष के उम्मीदवारों को देखने के बाद वो लिस्ट जारी करती है। तो ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। और जहां तक आप विद्वान पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के हालात ऐसे हैं जिस प्रकार से आप लोग या भाजपा वाले जो ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है राष्ट्रीय चुनाव बिना दूल्हे के, बिना कप्तान के जो लड़ने जा रही है, तो वही हालात, वही उसी फार्मूला को स्टैंडर्ड मानते हुए मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के हालात इतने खराब हैं कि उनको दूल्हा नहीं मिल रहा है। बेचारे रमन सिंह को ये लोग अपना नेता नहीं मान रहे हैं। रमन सिंह के लीडरशिप में जो व्यक्ति 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहा छत्तीसगढ़ का, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, उसको आप दूल्हा मानने को तैयार नहीं है। तो जिस पैमाने को लेकर आप लोग कांग्रेस पर अटैक करते हैं कि भैया 26 पार्टी तो जुट गए, दूल्हा कहाँ है? तो भैया छत्तीसगढ़ में आदरणीय हमारे जो बड़े भाई जो संपादक साहब है उनसे भी पूछिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कहाँ है बीजेपी का, राजस्थान में दूल्हा कहाँ है? और टिकट इसका जवाब तो जयराम जी को देना है या कांग्रेस करती है? नहीं, विनोद जी हमारे बड़े भाई हैं और विद्वान हैं, इंडिया के सबसे बड़े विद्वान संपादकों में से आते हैं। मैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में यदि बीजेपी अपने दुल्हा या कप्तान का घोषणा नहीं करता है तो क्या ये बीजेपी की एक मजबूत स्ट्रेटजी है? यदि ये मजबूत स्ट्रेटजी है तो फिर कांग्रेस को आप क्रिटिसाइज मत कीजिए कि भाई 26 पार्टियों का गठबंधन तो बना लिए, दूल्हा कहाँ है? अच्छा, तो भाई फार्मूला तो एक ही चलेगा ना। ठीक है, एक फार्मूला दोनों के समान रूप से। मैं इसी फार्मूले पर जयराम जी का जवाब लेता हूं। तक सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। 26 पार्टियों का गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया है, 2 बैठकें हो चुकी है। आप तीसरे बैठक में जैसे ही संयोजक का नाम घोषणा होगा, कई ऐसे पहलू हैं जिससे बातचीत होगी और आपके सामने में नतीजे होंगे। तो चिंता करिए, भाजपा को दूसरे घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने अभी चिंता की भी नहीं है, अभी वो जवाब देंगे। जयराम जी, सबसे पहले तो आपसे जो ऋषि मिश्रा जी ने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिएगा, और दूसरी बात ये बताइएगा कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? अभी से आपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कार्यकर्ता के माध्यम से लगी रहती। ये नहीं चुनाव आया हम जग गए और चुनाव के बाद अगर मशीनरी फिर छुट्टी मनाने के लिए इटली और बैंकॉक थाईलैंड चली जाती है, ऐसा नहीं है। हम जनता के बीच में सालों भर 24 घंटे काम करने वाले संगठन के रूप में कार्यरत है
इसके चुनाव हो या कोई आपदा हो, चाहे कोरोना के का काम देख लीजिए, हम पार्टी के तौर पे एकलौते पार्टी हमारी एकलौती थी जिसके कार्यकर्ता सड़कों पे थे। उसी प्रकार हम चुनाव को भी अपना कर्तव्य मानकर तो हम आगे दिख रहे हैं, हर जगह परिणाम में भी दिखते हैं, लेकिन स्टैंड कतरी और करनी में कितना होता है ये तो कांग्रेस के नाम पर जो बाकी लोग अपनी बयानबाजी करते हैं उनके बातों से साफ पता चलता है। कांग्रेस की चुनाव जीत जाए, ईवीएम के लिए तालियां होती है सर, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाए, अरे ईवीएम के लिए छाती पीटना शुरू हो जाता है। तो दोहरा स्टैंड इनका, दोहरा चरित्र इनका, ये सब देख ठीक है। INDIA जो डॉट है ना, इतने सारे तो डॉट कितने डाउट्स में बदलते जा रहे हैं। ये दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी और ये डॉट्स और लालू प्रसाद यादव के रहस्यमयी वक्तव्यों में और उनके आचरण में दिखाई पड़ती है। ठीक है, आपसे संपर्क में थोड़ी सी बाधा आ रही है। लगातार इतने सारे डॉट्स हैं कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, आपसे संपर्क में थोड़ी बाधा आ रही है, तो इस बीच में जरा ठीक करवाता हूं। मैं आपसे संपर्क में थोड़ी बाधा आ रही है, मैं इस बीच विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि ये बात अब उठ रही है कि ये जो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग है INDIA का, ये नीतीश कुमार के दिमाग की उपज नहीं है, ये लालू यादव के दिमाग की उपज है। अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ ये कि बिहार अभी भी उसका केंद्र बना हुआ है, क्योंकि तो जिस तरह से कि इस तरह की बातें आ रही हैं कि बिहार अभी भी उसी बात का केंद्र बना हुआ है कि वहां पर देखिए जो कानून व्यवस्था का मसला है उसको लेकर लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इसके बाद जो ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार की अब भूमिका क्या रहेगी, इसलिए भी दिल्ली आए, अटल जी की समाधि पर गए, लेकिन किसी से मिल नहीं पाए INDI गठबंधन के नेताओं से। लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊँ से पहले अभी जो ऋषि जी बता रहे थे, मैं उन्होंने शायद मुझे ही पहले पूछ लिया था, पूछना चाहिए था। बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जयराम जी बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। कि देखिए सबसे दिक्कत क्या है, पहला तो ये कि ये लोग राजनीतिक विश्लेषक अपने को कहते हैं और सीधे सीधे कांग्रेस के एजेंडे पे आ जाते हैं, और फिर उनको ये बात सुनने में भी अटपटा सा लगता है कि मुझे कांग्रेस भी ना कहा जाए। ये कहने की बात नहीं है। अब सीधे सीधे मैं उनका जवाब पे आ जाता हूँ कि उन्होंने क्या, उनका जवाब ये है कि अगर वो भूपेश बघेल इतने ही कद्दावर और इतने ही मजबूत नेता हैं, तो आप ये बताइए कि 4.5 साल तक टीके सिंहदेव लड़ते रहे कि हम डिप्टी से 3 ईयर का हमारे पास ही एग्रीमेंट था, 2.5 ईयर और 2.5 साल का हमारा ये था कि दोनों चीफ मिनिस्टर बनेंगे अलग अलग टाइम में। लेकिन आखिरकार उनको लास्ट में 4.5 साल बीतने के बाद उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया गया? आखिर क्या मजबूरी थी कि भूपेश बघेल को एक डिप्टी CM भी चाहिए था छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में? दूसरा सवाल आप ये देखिए कि कांग्रेस की तैयारी और कांग्रेस की का जो अभी ये बता रहे थे कि INDIA की अपनी शर्तें हैं और उसमें 26 दल बंधे हुए हैं, तो इसमें आप देखिए कि कांग्रेस की क्या भूमिका है। कि आपने देखा कि जैसे ही परसों तरसों जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली इकाई की राहुल गांधी और खड़गे जी के साथ में, उसके बाद क्या हुआ, एक पार्टी प्रवक्ता अलका लांबा ने जरा सी अभी बात मीडिया में बात कही कि हम 7 सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े अगले दिन, और सबने अलका लांबा को बताना शुरू कर दिया कि ये छोटे मोटे नेता हैं, इनकी बात को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो आप जिस तरह की आपकी व्यवस्था है, आपकी मजबूरी है कि आप एक तरह से INDIA गठबंधन में किसी तरह से रेंगते हुए दिखना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि ये INDIA गठबंधन किसी तरह से चले और 2024 का जो मुकाबला की बात कर रहे हैं वो मुकाबला का आप एयर बना सके। रही बात आपके, मैं दूसरे सवाल पे आता हूं कि जो बात आप आपने कही है कि जो लालू यादव और नीतीश कुमार का, तो देखिए ये चीजें साफ है, बिहार के लोग ही नहीं पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि
आखिर ये अचानक कैसे हुआ कि नीतीश कुमार अचानक बिहार से चलते चलते दिल्ली पहुंच गए और राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच गए। तो वो जो कन्वेनर की बात वो कह रहे थे, लालू यादव जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए, तो ये बात भी सच है कि उसके पीछे का तर्क ये है कि जो संयुक्त मोर्चा का बनाने का, जो आपको याद होगा उस दौर में 90 के दौर में, उस संयुक्त मोर्चा के बनाने में लालू यादव अपने को मानते हैं कि वही सबसे सूत्रधार रहे हैं। तो इस दौर में भी वो अपने लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं बीजेपी के खिलाफ में। और नीतीश कुमार को एक तरह से उन्होंने एक मुखौटे के सामने में रखा है कि नीतीश कुमार के सुशासन को और नीतीश कुमार के जो अपना पॉलिटिकल ये रहा है पिछले 17-18 साल का, उसके बॉगी में हम लोग जाएंगे। हुआ क्या है ये आप बिहार की आज की राजनीति में देख सकते हैं, एक पत्रकार की कैसी हत्या हुई है। तो जब सवाल नीतीश कुमार के वहां अपने सुशासन पे उठ रहे हैं, तो उसका फेस बना के लालू यादव किस तरह से बीपी जी की मुकाबला कर सकते हैं, ये बात तो शायद बिहार के लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं होगा। लाल जी, लौटता हूँ आपके पास और ऋषि जी के पास चलता हूँ, फिर जयराम जी के पास जाऊँगा। ऋषि जी, ये बताइए कि खुले तौर पर संदीप दीक्षित कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल फांसीवादी है, अरविंद केजरीवाल ये हैं वो हैं, अलका लांबा बयान दे रही हैं, जो अजय माकन है वो बयान देते रहते हैं, पंजाब कांग्रेस से विरोध हो रहा है। ऐसे में आपको लगता नहीं है मुंबई वाले अधिवेशन से, ऋषि जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपको कितनी उम्मीद है? नहीं, निश्चित ही यदि संजीव दीक्षित यदि अलायंस हो रही है, उसमें यदि आम आदमी पार्टी है, तो इस प्रकार का बयान यदि संजीव दीक्षित देते हैं तो पार्टी को जरूर संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आप अलायंस बना रहे हैं और अलायंस में आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध आप इस प्रकार का बयान देंगे तो वो अलायंस में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के जो वर्कर होंगे, यदि आप साथ चुनाव लड़ते हैं तो असहज महसूस करेंगे। तो ऐसे बयान कोई भी पार्टी का नेता देता है तो पार्टी के मुखिया को, पार्टी के जो सर्वेसर्वा हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको जरूर संज्ञान लेना चाहिए। जहां तक हमारे विनोद जी ने बताया अलका लांबा के पूरे बयान को आप दिखाइए। उन्होंने कहा 7 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने का मतलब नहीं है कि आप 7 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस पर आम आदमी पार्टी को भड़कना नहीं चाहिए था, बड़ी जल्दी भड़क गई प्रियंका कक्कड़। अरे प्रियंका कक्कड़ कौन सी, सौरभ भारद्वाज का भी तो बयान आ गया है, अरविंद केजरीवाल जी का भी बयान आ गया। तो आप कक्कड़ के बयान को लेकर पकड़ के बैठे हैं। सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा? सौरभ भारद्वाज जो है पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि जब दोनों पार्टी के जब शीर्ष नेता बैठेंगे, गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता बैठेंगे, तो सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी। ठीक है। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि वो अधिक से अधिक सीट लड़े। 7 सीटों पे तैयारी का ये मतलब नहीं है कि आप 7 सीट लड़ने जा रहे हैं। यदि आप अधिकतम सीटों पे तैयारी करेंगे तभी तो आप दावेदारी अधिक से अधिक कर पाएंगे। ठीक है। और जहां तक अलका लांबा और संदीप दीक्षित के बयान को यदि पार्टी का बयान आप मानते हैं या हमारे संपादक साहब मानते हैं, तो मैं तो कहूंगा फिर सुब्रमण्यम स्वामी तो खुद भाजपा के विरुद्ध कई ऐसे बयान दिए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध ऐसे बयान दिए हैं। तो क्या मैं मानूं कि भाजपा जो है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में है या भाजपा खुद अपनी सरकार के विरुद्ध में है? सुब्रमण्यम स्वामी तो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं वो। ठीक है। ऐसे एक इंडिविजुअल किसी नेता के बयान को आप पार्टी का बयान मानते हैं, ये मुझे समझ से परे। ठीक, लौटता हूं। अब मैं चलता हूं जयराम जी के पास। जयराम जी, बिहार में आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो INDA है, ये पूरी की पूरी इंजीनियरिंग लालू यादव जी के दिमाग की है? इसमें नीतीश जी तो बस एक मोहरा के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी की छटपटाहट से साफ दिख रहा है। जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र ने उनके गठबंधन पर, उनकी सरकार पर कब्जा जमा लिया है, नीतीश जी भी छटपटाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के जीवन की एक ही पूंजी रही, और वो पूंजी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और आशीर्वाद से मिली थी, सुशासन भाव। और आज उस सुशासन भाव की स्थिति ये है, 2022 में उन्हीं की पुलिस का आंकड़ा है 425 प्रकार लगातार हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कोई ऐसा थाना नहीं है जहां प्रतिदिन हत्या नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी का वो सुशासन बाबू का जो इमेज था, जो छवि थी, वो ढह, और इसके जिम्मेदार कौन है? लालू प्रसाद यादव, जनता राज के प्रणेता। और उनके साथ जब वो जाकर खड़े हो जाते हैं तो सुशासन और विकास के सारे मायने खत्म हो जाते हैं। भ्रष्टाचार मामले में पूर्व
मुख्यमंत्री जो सजाया आता है वो बेल पर घूमकर अपनी राजनीति करता है। नीतीश कुमार देश को कौन सा मॉडल बताना चाहते हैं? मजबूर मॉडल बताना चाहते हैं या मजबूत मॉडल देना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार जी के कृत्यों से साफ दिखता है। ठीक, मैं आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे ऋषि जी, बोलिए। ऋषि जी, विमल यादव जी का आज अररिया में हत्या हुआ है, पत्रकार महोदय का, और मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं मर्माहत हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बिहार सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है फेल है। लेकिन मैं भाजपा से सवाल ये करना चाहता हूँ, भाजपा के जो नए नवेले अभी पार्टनर बने हैं एलजीपी, उनके एक बड़े नेता के यहाँ भी एनआईए कुछ दिन पहले छापा मारा था और इतना बड़ा कुछ मिला था, इतना बड़ा पेपर में लेपटा हुआ पुलिस ने लेके आया था। क्या था नहीं बताएंगे, एनआईए ने छापा मारा था। और एनआईए कहीं ऐसे लोग छापा नहीं मारता, वो एलजीपी के बड़े नेता हैं और वो जानते हैं, हमारे जो भाई बैठे हैं वो जानते हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है बाहुबली से, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एनआईए ने छापा मारा था। ओहो बस, अब पार्टनर बनाएंगे उस बाहुबली को पार्टनर बनाएंगे। इतना बड़ा कुछ मिला। अच्छा ठीक है, आप दोनों के पास आता हूँ, आप दोनों 1 मिनट रुकिएगा। बताएंगे क्या मिला था, रुकिए 1 मिनट रुकिए। विनोद जी के पास मुझे जाने दीजिए। विनोद जी, मुंबई अधिवेशन से कितनी उम्मीद है, क्या ये सुस्ती हटेगी? एक्चुअली क्या है कि ऋषि जी जो चाह रहे हैं पूरे डिटेल करना हमारी डिस्कशन को, तो ये डिटेल ना करें। हम जो टॉपिक है हमारा, हम एलजेपी, एनआईए और इन सब चीज़ों पे अभी बहस करने के लिए वो कभी एक दिन आए, हम उनका स्वागत करते हैं। और जयराम जी भी रहेंगे, वो भी जानते हैं बिहार के बात को और बिहार की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से जानते हैं, वो जवाब देंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है आज का, वो देखिए कि कैसे एक कन्फ्यूजन का जो ये स्टेट बना हुआ है, ये कन्फ्यूजन का स्टेट है कि हर स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरह से ये जो मिशन 2024 के लेके निकले हुए थे, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी का आइडिया हो या ममता बनर्जी का आइडिया हो, ये हम इन लोगों भी चर्चा न करें तो शायद बेहतर है, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपना आइडिया की बात की थी। ममता बनर्जी ने कहा था ये हमारा आइडिया है, राहुल गांधी के भी ट्विटर हैंडल से कहा गया कि राहुल जी का आइडिया है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल सबके सामने में यही है कि पूरे टीएमसी में ममता बनर्जी अगर मिशन 2024 के लिए बंगाल में कंसंट्रेट कर रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर आप यूपी में देख लीजिए, जो अखिलेश यादव का दावा है कि 80 सीट हमारी है, ऐसे ही आप तमिलनाडु में देख लीजिए, ऐसे ये सारे सवाल हैं। तो ये जो कर्नाटक वाला फॉर्मूला इन्होंने दिमाग में बैठा रखा है कि 424 में अगर हम डायरेक्ट फाइट के स्थिति में होंगे बीजेपी का, तो हम लोग शायद कम से कम इस AINDIA गठबंधन को एक मजबूत स्थिति में लाएंगे। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि सवाल कई है, समय की कमी है, मैं अभी अब माफी के साथ आ नहीं पाऊंगा, लेकिन इस चर्चा को तो हम लोग करते ही रहेंगे। ऋषि जी कभी आइएगा, फिर और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयराम जी आपका भी शुक्रिया और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब अगली स्टोरी जो है वो हमारी पश्चिम बंगाल से है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के इमामों और उनके सहयोगियों के साथ एक बैठक करने वाली हैं। दरअसल 21 अगस्त को होने वाले इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, लेकिन ये जो बैठक है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे मकसद क्या है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये चर्चा है कि टीएमसी सरकार इमामों और उनके सहयोगियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी करके उनकी नाराजगी दूर करना चाहती है। मुस्लिम समुदाय में इन इमामों का अपना रसूख है जो समाज के बीच ओपिनियन बनाते हैं। तो सवाल यह है कि टीएमसी के सबसे पक्के सपोर्टर माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय में ममता को लेकर आखिर नाराजगी बढ़ी क्यों, जिस पर अब ममता बरसाने जा रही हैं। दरअसल बड़े दरगाहों के मुस्लिम नेता की पार्टी आईएसएफ की बढ़ी सक्रियता ने ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पंचायत चुनाव में सेक्युलर फ्रंट का बड़ा विरोध टीएमसी को झेलना पड़ा था
और पंचायत चुनाव में एक बात और खास थी कि मुस्लिम समुदाय के 30 से भी ज्यादा कार्यकर्ता हिंसा में मारे गए हैं। जाहिर है कि समुदाय की नाराजगी टीएमसी के लिए बढ़ गई है। तो ऐसे में जाहिर है कि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले इमामों को अपने समर्थन के लिए मनाने की भरपूर कोशिश करेंगी। एक और मामला है पश्चिम बंगाल का, जाधवपुर यूनिवर्सिटी का मामला है, जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर छात्र के साथ सामूहिक रैगिंग हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। इससे लोग वहां पर हिल गए हैं। यह मामला बढ़ गया है। विश्वविद्यालय में अर्बन नक्सल के बढ़ते प्रभाव पर पहले भी कई शिकायतें आई थीं। आए दिन विश्वविद्यालय में बवाल यहां की पहचान बन गई है, लेकिन प्रशासन वहां पर खामोश है। तो सवाल यह है कि ज्ञान के इस केंद्र को विचारधारा के स्कूल में किसने बदला? क्यों फ्रीडम के नाम पर यहां कुछ लोगों को इतनी छूट मिल गई कि विश्वविद्यालय प्रशासन अक्षम बना रहा? सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी के साथ, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, पहले भी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और उसके बाद जो पंचायत चुनाव का रंग ढंग रहा, इससे लगता है कि ममता दीदी को वहां पर इमामों पर अपनी ममता बरसाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्या? देखिए लालचादी, इमाम की इस कहानी पे आने के पहले मैं एक बात कह दूं कि आने वाले कुछ ही दिन में कुछ विधानसभा क्षेत्र पर पूरे देश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें बंगाल का भी एक जगह है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में धूपगुड़ी, वहां पे बीजेपी के विधायक उनकी देहांत हो जाने के कारण वहां पे उपचुनाव होने जा रहा है। तो वहां पे एक उम्मीदवार खड़ा किया है सीपीआईएम की तरफ से और जिनको समर्थन किया कांग्रेस ने, और एक उम्मीदवार खड़ा किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। मैं इसलिए ये बात को पहले पूरे देश को बताना चाहता था कि ये जो INDI की चक्कर में ये लोग मुंबई में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो आने वाले ये विधानसभा चुनाव इसका एक छोटा सा झलक है कि क्या होने जा रहा है। एक तरफ वाम मोर्चा और कांग्रेस, दूसरी तरफ तृणमूल, ये किस तरह से इंडिया बनाएंगे वो तो वो सोचेंगे। ये गया मेरा पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी बात है, आप सही कहा कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में एक के बाद एक 30-35 मुसलमानों की मौत हो चुके हैं, और कभी कभी वो इन तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण, तृणमूल कांग्रेस के साथ ISF या कांग्रेस या CPIM की लड़ाई के कारण। ठीक। अब उनकी उसके बाद ममता बनर्जी को लगने लगा है, जो सही भी है, कि ये जो यहाँ पे तो INDI का कॉन्सेप्ट के बारे में तो सोचना भी दूर की बात है, उनको लड़ना है अपने बलबूते पर। तो अगर ये लोग, ये जो मुसलमान जो पंचायत में मरे हैं, ये अगर CPIM और कांग्रेस की तरफ चले गए तो मेरा क्या होगा 2024 में? मैं जिस तरह से अपने फैन क्लब के जरिए अपने फैन क्लब के जरिए जैसे अपने आप को प्रधानमंत्री, जैसे 2 दिन पहले हम लोगों ने ये स्टोरी की जी, बिल्कुल, कि अपने फैन क्लब के जरिए अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने की कोशिश में है, तो इसीलिए इन्होंने अभी इमामों के थ्रू, इनके थ्रू अगर किसी तरह से वापस समर्थन मिल पाए, इसका कोशिश है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय की कमी है, हम आगे फिर इस पर चर्चा करते रहेंगे। अभी रुख करते हैं हिमाचल का, जहां पर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई है, लेकिन राहत और बचाव कार्य के बजाय राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक विवादित बयान दे दिया। राहत और बचाव पर फोकस करने के बजाय ये विवादित बयान CM ने दे दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बेहद शर्मनाक बयान सामने आया जब उन्होंने शिमला में तबाही का ठीकरा बिहारियों पर फोड़ दिया और कहा कि बाहर से आए आर्किटेक्ट, जिन्हें मैं बिहारी आर्किटेक्ट कहता हूं, वो यहां आते हैं और फ्लोर पर फ्लोर बना देते हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान है। तो हिमाचल में भारी बारिश के कारण बड़े स्तर पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 71 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। राज्य में भारी तबाही हुई है, लेकिन राहत और पुनर्वास पर फोकस करने के बजाय मुख्यमंत्री इस तरह का शर्मनाक बयान दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के विवादित बयान पर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने करारा हमला किया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने बिहार के लोगों को दोषी ठहराकर और उनका अपमान कर अपना असली रंग दिखा दिया। साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा
कि बिहार के लोगों का अपमान करने का किसी भी मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर सुखविंदर सुक्खू। ये अनुराग सिंह ठाकुर ने खास तौर पर बयान देकर कहा, और ये भी कहा कि बिहार के लोगों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो मजदूर हो या आईएएस और आईपीएस अधिकारी या फिर मीडिया कर्मी ही क्यों ना हो। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, बिहार के ऊपर टिप्पणी करना किसी राज्य के मुख्यमंत्री की शोभा नहीं देता है, चाहे मेरे अपने ही राज्य के क्यों ना हो। बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मजदूरी से लेके मीडिया तक, आईएएस से लेके आईपीएस तक, अन्य सर्विसेज तक, बहुत उनका योगदान है राष्ट्र निर्माण में, भारत के निर्माण में। तो इसलिए टिप्पणी करके आप अपनी जान बचा लो, वो तो बेचारे काम करने आते हैं। आखिरकार कानून की पालना करना किसका काम है? राज्य की सरकार का। मैं इतना ही कहूँगा, आपदा के समय आपस में ना लड़ें, आपदा के समय राजनीति ना करें, आपदा के समय मदद के लिए आगे आएं और राहत कार्य बढ़ चढ़ कर दें। केंद्र सरकार ने भरपूर मदद एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से भी, और जो भी सुविधाएं चाहिए थी एयरफोर्स से लेके अन्य, वो सारी देने का काम किया है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, ये वाकई जो बयान उन्होंने दिया, हालांकि बाद में जब बयान पर हमला हुआ, बयान का विरोध हुआ, तो उन्होंने फिर उस पर सफाई भी दी है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बयान देकर लगता है कि उन्होंने खामखा ध्यान बटाने की कोशिश की है। फोकस होना चाहिए राहत और पुनर्वास पर, और यहां पर बयान दे रहे हैं वो बिहारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लालचंद्र, ये बयान दरअसल ऐसी कोशिश प्रतीत होता है कि जो उनकी जिम्मेदारी है उससे वो बचना चाहते हैं। हमने देखा कि आपने सुनाया भी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया और कहा कि बिहार के लोगों का बहुत योगदान है, आईएएस आईपीएस हो, मीडिया में हो, मजदूर हो, देश के निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो समय है वो राहत बचाव कार्य का है, कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इस तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो उनके मंत्री हैं वो अलग अलग तरह के बयान न दें। और जहां तक अगर कोई नियम है, वो नियम अगर राज्य में पालन नहीं हो रहा है, अगर वो निर्माण का नियम है, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल सरकार की है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है हिमाचल प्रदेश में, और मौजूदा समय में भी सत्ता में है। तो किसी पर दोषारोपण करके बचा नहीं जाना चाहिए। ये मौका है दरअसल ज्यादा से ज्यादा राहत बचाव कार्य हो, बाद में समीक्षा होगी कि क्या और बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरह के विवादित बयान नहीं देने चाहिए, चाहे वो हिमाचल के मुख्यमंत्री क्यों न हो या अरविंद केजरीवाल हो। तो एक तरह से बीजेपी की तरफ से नसीहत भी दी गई है, अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ से नसीहत भी दी गई है हिमाचल के मुख्यमंत्री जी। शुक्रिया शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, अब फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते सोमवार को इसी वक्त इस वक्त कार्यक्रम के साथ। और इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।